بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، میں آپ کی ٹیچر مسز شمی مرتضیٰ ہوں۔ میں آپ کو اردو کا آج چھٹا سبق پڑھاؤں گی اور سبق کا عنوان ہے عملی کتاب کا صفحہ نمبر 17، 18، 19۔ میں آپ کو ورچوئل آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم دہرائی سے شروع کریں گے، جو پہلے آپ کو میں پڑھا چکی ہوں۔ ایک دفعہ اس کو دہرا لیتے ہیں۔ الف، الف کیا ہے یہ؟ الف آ، الف آ انگور، الف آ انگور، الف آ انار، الف آ انار، الف مد آ، یہ کیا ہے؟ الف مد آ، الف کی آواز ہلکی ہوتی ہے، الف آ، الف مد آ کی آواز تھوڑی بھاری ہوتی ہے اور لمبی ہوتی ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ الف مد آ آم، الف مد آ آدمی، الف مد آ آم، الف مد آ آدمی۔ آپ سب بچے میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں نا؟ الف آ، الف مد آ، اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے بے۔ بے کے نیچے یہ کیا ہے؟ نقطہ۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بے ب، بے ب بلی، بے ب بطخ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے پے۔ بے اور پے میں بے اور پے میں کیا فرق ہے؟ نقطوں کا فرق ہے۔ بے کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے اور پے کے نیچے کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ 3۔ 1، 2، 3۔ اور اس کی آواز کیا ہے؟ پے پا، پے پا پنکھا، پے پا پتنگ، پے پا پنکھا۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے تے۔ تے کی آواز کیا ہے؟ تے تا۔ بے اور پے کے نیچے نقطے تھے لیکن اس کے اوپر 2 نقطے ہیں، 1 اور 2، اور اس کی آواز کیا ہے؟ تے تا، تے تا، تے تا تتلی، تے تا تربوز، ٹے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ٹے۔ میرے ساتھ پڑھیں، ٹے۔ ٹے کے اوپر کیا ہے؟ تویاں۔ چلے پڑھیں اس کو۔ ٹے ٹا ٹوپی، ٹے ٹا ٹیلی فون، ٹے ٹا ٹوپی، ٹے ٹا ٹیلی فون۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے سے۔ جس طرح تے کے اوپر 2 نقطے تھے، اس کے بھی اوپر 3 نقطے ہیں، تو اسے تے سے کیا چیز مختلف کر رہی ہے کہ اس میں ایک نقطہ زیادہ ہے۔ 1، 2، 3۔ اور اس کی آواز کیا ہے؟ سے سے سمر، سے سمر۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے لاسٹ لیسن میں، پچھلے سبق میں ہم نے اس کو پڑھا تھا۔ چلیں اس کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ جیم ج، جیم ج، اور اس میں کتنے نقطے ہیں؟ اس میں 1 نقطہ ہے۔ اس کو کیسے لکھتے ہیں؟ پہلے ترچھی لائن، چھوٹی سی ترچھی لائن، پھر سیدھی لائن اور پھر گول۔ اور اس کو کیا بولیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ جیم، جیم ج، جیم ج۔ اور اس سے کیا بنتا ہے؟ جیم ج جگ، جیم ج جگ، جیم ج جہاز، جیم ج جہاز۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے چے۔ یہ بالکل دیکھنے میں جیم جیسا ہے لیکن اس میں نقطے کتنے ہیں؟ 1، 2، 3۔ چلیں اس کو پڑھتے ہیں۔ چے چ، میرے ساتھ پڑھیں۔ چے چ، چے چ چاند، چے چ چڑیا، چے چ چوزا۔ اس سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں۔ چلیں میرے ساتھ پڑھیں۔ چے چ چاند، چے چ چڑیا۔ اس کو بھی جیم کی طرح لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے ترچھی لائن، پھر اس کا سر بنائیں گے سیدھا اور پھر گول۔ سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی بچوں؟ میرے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں ہم، یہ اپنا پچھلا سبق دہرا رہے ہیں تاکہ ہم اس کو بھول نہ جائیں۔ چے چ، چے چ۔ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے ہے۔ یہ دیکھیں بالکل خالی ہے، اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اس کی آواز کیا ہے؟ ہے ہ،
हे हा हुक्का, हे हा हलवाई। मेरे साथ साथ पढ़ें, हे हा हुक्का, हे हा हलवाई। और इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं है और इसको भी वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने जीम और चे को लिखा है। और ये है खे, खे। मेरे साथ साथ पढ़ें, खे। और इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं? हाँ, एक ही है और ये इसके बिल्कुल दरमियान में है। इसके जो सर है, सर की सीधी लाइन के बिल्कुल दरमियान में नुक्ता है। इसको कैसे पढ़ेंगे? खे ख। हे हा की आवाज हल्की होती है लेकिन खे ख की आवाज थोड़ी भारी होती है। और इससे कौन से लफ्ज बनते हैं? खे ख खुबानी, खे ख खरबूजा, खे ख खुरबानी खुबानी। आज हमारा ये नया सबक स्टार्ट हो रहा है, शुरू कर रहे हैं हम नया सबक। तो मेरे साथ पढ़ें। ये आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? नया लफ्ज क्या है? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे दाल। इसको शुरू करेंगे और थोड़ा सा गोल करके लाइन के साथ लिखेंगे, ठीक है? मेरे साथ बोलें, दाल। दाल से क्या बनता है? दाल दवात, दाल दवात। मेरे साथ साथ पढ़ें। हाँ जी, सब बच्चे मेरे साथ साथ पढ़ें। दाल दवात, दाल दरवाजा, दाल दरवाजा। ये आपका नया हर्फ है, इसे बहुत गौर से देखें और पढ़ें। दाल दवात, दाल दरवाजा। और ये देखिए, ये भी बिल्कुल दाल जैसा है लेकिन उसके ऊपर क्या है? तोए। पहले हमने किसके ऊपर तोए पढ़ा था? टे के ऊपर, ठीक है? ये छोटा सा तोया है, ये हमें इसे दाल से मुख्तलिफ बना रहा है। इसे हम नुक्ते से शुरू करेंगे। हाँ, ये बी स्मॉल लेटर बी जैसा है, बस थोड़ा सा लंबा करें जी। और ये क्या है? ये दाल जैसा है। डॉट डॉट से शुरू करें और थोड़ा सा गोल और सीधा लाइन के साथ। ये क्या है? ये है डाल। डाल ढोल, डा डा ढोल। मेरे साथ साथ पढ़ें। डाल की आवाज क्या है? ड। दाल की आवाज क्या थी? द। दाल की आवाज हल्की होती है और डाल की आवाज भारी होती है। डाल ढोल, डाल डंडा। ये देखिए, नजर आ रहा है आपको? ये है डंडा। डाल ढोल, डाल डंडा। एक दफा और पढ़ें। डाल ढोल, डाल डंडा। और ये क्या है? ये है जाल। क्या है बच्चों? जाल। इसे क्या चीज मुख्तलिफ कर रही है दाल और डाल से? इसके ऊपर एक नुक्ता है, बिल्कुल इसकी डॉट के सर के ऊपर एक नुक्ता है। इसे क्या बोलेंगे? जाल। क्या बोलेंगे? जाल। इसे डॉट से शुरू करके थोड़ा सा गोल करके लाइन के साथ खत्म करेंगे। जाल। ये क्या है? जाल। चले देखिए, जाल से क्या बन रहा है? जाल जखीरा। ये क्या है? जखीरा। जखीरा किसको बोलते हैं? जिसमें हम अपनी बहुत सी मुख्तलिफ चीजें रख लें, जमा कर लें, उसको जखीरा बोलते हैं। क्या है ये? जाल जखीरा, जाल जखीरा, जाल जखीरा। एक दफा रिपीट कर। ये है आपका जो आपने धुराई अभी की है, जीम चे ये खे। ये अमली किताब का सफ़ा है, इसको खोलें मेरे साथ और जीम से शुरू हो मुख्तलिफ हरूफ से। जी बच्चों, अपनी अमली किताब का सफ़ा नंबर 15 खोलें और तस्वीर के नाम के पहले हर्फ पर दायरा लगाएं। ठीक है, खोलिए आपने अपनी किताब, पेंसिल आपके हाथ में है। अब ये देखें, ये क्या आ रहा है नजर आपको? ये जहाज है। नीचे कौन कौन से लफ्ज हैं? चे, हे और जीम। अब आप किसके साथ दायरा लगाएंगे? किसके ऊपर दायरा लगाएंगे? आप मुझे बताएं। चले, कौन सा अच्छा बच्चा है जो मुझे बताएगा? चे नहीं, चे से तो चांद होता है। हे नो, हे से हुक्का होता है। जी बिल्कुल ठीक, जीम। हम जीम पर दायरा लगाएंगे। किस पे दायरा लगाएंगे? जीम पर। मेरे साथ बोलें। जीम जहाज, जीम जहाज। अब आगे क्या है?
आगे है, ये क्या है, इसको बोलते हैं चाकू। ये किस से शुरू होगा, चे। अब हम चे चे पर दायरा लगाएंगे। चे किधर है, ये है, खे है, ये जीम है और ये है चे। चे पर दायरा लगाएं, जी, चे चा, चाकू, चे चा, चाकू। एक दफा फिर जीम जहाज पढ़ लेते हैं आप, ताकि भूले नहीं। क्या है ये, जीम जहाज। क्या है, जीम जहाज। चे चाकू, चे चाकू। अब ये क्या है, ये देखें, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये है खरबूजा। ये क्या है, खरबूजा। और इसका पहला हर्फ कौन सा है, खे, खा। देखें, ये चे है, इससे नहीं, ये भी नहीं है, ये जीम है, नहीं, इस पे भी दायरा नहीं लगाएंगे। ये है खे, खे पर दायरा लगाएं, खे खा खरबूजा, खे खा खरबूजा, खे खा खरबूजा। अब ये क्या है, ये है हुक्का। हुक्का, हुक्का का पहला लफ्ज कौन सा है, हे। आप खुद देखें, हे किधर है, हे हा किधर है, ये क्या है, नहीं, ये तो जीम है, ये चे है, तो हे किधर है, ये है हे हा हुक्का, हे हा हुक्का। अब बच्चों, आपने ये सारा सफ़ा करना है, अपनी अम्मी के साथ दोबारा से इसको पढ़ना है और इसमें अच्छे अच्छे रंग भरने हैं, ठीक है, और इसकी मश्क करनी है ताकि आपको समझ आए इसका। चले, अब हमने जो नए अल्फाज सीखे हैं, पढ़े हैं, उसको पढ़ना और लिखना सीखें। ये क्या है, मैंने आपको सिखाया है दाल। क्या है, दाल। और इससे शुरू होने लफ्ज़ कौन से, शुरू होने वाले लफ्ज़ कौन से हैं, दाल, दवात, दाल द दवात, दाल द दवा। दवा आपको पता है क्या है ना, जब हम बीमार होते हैं तो हम मेडिसिन लेते हैं, और मेडिसिन को हम उर्दू में क्या बोलते हैं, दवा। दाल द दवा, दाल द दरख्त। ये क्या है, दरख्त, दाल द दरख्त। चले, हम इसे लिखना थोड़ा सा सीख लेते हैं। डॉट से शुरू करेंगे और गोलाई में नीचे लाइन के साथ लिखेंगे। प्यारे बच्चों, ये याद रखें कि ये लाइन से नीचे नहीं जाएगा। अगर लाइन से नीचे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसको लाइन के साथ साथ लिखना है। दाल क्या है, और इसकी आवाज क्या है, द, दाल द, दाल द। इसको लाइन के साथ साथ लिखते जाना है। इसको आपने इसी तरह ट्रेस करना है जिस तरह मैंने आपको ट्रेस करना सिखाया है, लिखना सिखाया है। एक दफा और पढ़ लेते हैं। दाल द दवात, दाल द दवा, दाल द दरख्त। इसका जो बाकी सफ़ा है, चलें एक और लाइन ट्रेस कर लेते हैं। दाल द, दाल द। लाइन से, नुक्ते से शुरू करना है, गोल बनाना है और लाइन के साथ इसको लिखना है। प्यारे बच्चों, बाकी जो इसका सफ़ा है वो आपने घर में, घर का काम करना है और इसमें बहुत अच्छा सा रंग भरना है। मैं फिर चेक करूंगी किस बच्चे ने सबसे अच्छे रंग भरे हैं। ये आपके घर का काम है। अब ये है दाल, ये देखें बिल्कुल दाल जैसी है, मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। इसके ऊपर क्या है, तोया। ये इससे मुख्तलिफ है क्योंकि इसके ऊपर है तोया। दाल के बाद क्या आता है, डाल, डाल डा ढोल, डाल डा ढोल, डाल डा डाकिया, डाल डा डाकिया, डाल डा डोर, डाल डा डोर, डाल डा ढोल। ढोल आपके घर में है ना, और डाकिए को आप जानते हैं, जो हमारा खत हम तक पहुंचाता है उसको क्या बोलते हैं, डाकिया। चलें, अब इसको लिखने का तरीका देख लेते हैं। ये बिल्कुल दाल और डाल की तरह लिखेंगे, दाल की तरह लिखेंगे, लेकिन इसके ऊपर क्या डालेंगे, तोया। तोया मैं आपको लिखना सिखा चुकी हूँ, टे के ऊपर भी हमने इसी तरह तोया बनाया था। इसको इसी तरह नुक्ते से शुरू करेंगे और गोल करके सीधा लाइन के साथ लिखेंगे। इसको लाइन के नीचे बिल्कुल नहीं लेके जाना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। और इसके ऊपर क्या है, तोया। इसे क्या मुख्तलिफ कर रहा है दाल से, इसका तोया। इसको क्या बोलेंगे, डाल, डाल डा ढोल। फिर बनाए, मेरे साथ साथ लिखें, सब बच्चे लिख रहे हैं, डाल डा ढोल। चलें एक दफा और लिख लेते हैं। चलें अब इसको दोबारा से लिखें, डाल, डाल। इसके ऊपर क्या है, तोया। एक दफा और लिखें, डाल, डाल डा ढोल,
डाल डा डाकिया, डाल डा डोर। ये भी बाकी सफ़ा जो है ये आपके घर का काम है और आपने इसमें भी बहुत अच्छे से रंग भरने हैं और बहुत नीट काम करना है। ये क्या है? ये है जाल। जाल ये क्या है? ये देखिए दाल और डाल जैसा है लेकिन इसके ऊपर क्या है? एक नुक्ता। दाल खाली होती है, डाल के ऊपर तोय होता है और जाल के ऊपर एक नुक्ता होता है। जाल ज़ख़ीरा, ये क्या है? जाल ज़ख़ीरा। मुख्तलिफ चीज़ों के मजमूए को हम लोग ज़ख़ीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज़ख़ीरा। जाल ज़ख़ीरा। मेरे साथ पढ़ें, जाल ज़ख़ीरा। चले इसको लिखने का तरीका देखते हैं। डॉट से शुरू करते हैं और सीधा लाइन के साथ लिखेंगे। इसके ऊपर एक नुक्ता है। जाल ज़ख़ीरा, जाल ज़ख़ीरा। फिर लिखें, मेरे साथ ट्रेस करें। जाल ज़ख़ीरा। फिर एक दफ़ा लिखें, जाल ज़ख़ीरा, जाल ज़ख़ीरा, जाल ज़ख़ीरा। आज हमारे उर्दू इस हमारे घर का काम है दाल डाल जाल। ये आपने कॉपी में बहुत अच्छी तरह करना है, नीट काम करना है। मैं ये चेक करूँगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।